ایک بار ایمن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی کام سے آئیں۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ ایمن پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگیں لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ تب ایمن نے دروازے کی جھری سے دیکھا تو وہ دیکھتی ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی چلاتے چلاتے سو گئی تھیں اور ایک عورت بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی ہے اور دوسری عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اور حسین کو جھولا جھلا رہی ہے۔ ایمن یہ سب دیکھ کر واپس چلی گئی۔ ایمن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور انہیں یہ سب منظر بتاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، میری بیٹی بی بی فاطمہ چکی چلاتے چلاتے تھک گئی تھی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تسبیح ادھوری رہ گئی تھی، اسی لیے اللہ پاک نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ ایک فرشتہ ان کی ادھوری تسبیح پوری کر رہا تھا، دوسرا فرشتہ حسن اور حسین کو کھلا رہا تھا۔ جو تم نے دیکھے وہ عورتیں نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ یہ سن کر ایمن وہاں سے چلی گئیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ انہوں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ بی بی فاطمہ کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ تب نبی نے پوچھا، بیٹی فاطمہ، تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہارا چہرہ اتنا اتر کیوں رہا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں ابا جان، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے گھر میں 2 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، میرے حسن حسین بھوکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی تم فکر مت کرو، اللہ ہے نا۔ نبی یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ایک کاروباری آدمی کھڑا تھا، اس نے علی شیر خدا کو مال اٹھانے کا کام دیا۔ حضرت علی نے سامان اٹھایا اور اس کی جگہ پر پہنچا دیا۔ حضرت علی کو اس کاروباری آدمی نے کچھ دینار دیے۔ حضرت علی ان کا آٹا لے کر اپنے گھر پہنچے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، لیو بی بی فاطمہ، تم اس کی روٹی بنا لو اور بچوں کو کھلا دو۔ یہ کہہ کر علی تھک کر سو گئے۔ بی بی فاطمہ نے روٹی بنائی اور حضرت علی، حسین اور حسن کو کھلائی اور خود بیٹھ کر روٹی کھانے لگیں۔ تب بی بی فاطمہ کو اپنے بابا جان کا دھیان آیا کہ میرے بابا بھی تو بھوکے ہیں، تو کچھ روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے گئیں۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے، بیٹی فاطمہ، میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بی بی فاطمہ نے کہا، ابا جان، اسی لیے میں آپ کے لیے روٹی لے کر آئی ہوں، لیجئے آپ کھا لیجئے۔ آپ نے وہ روٹی کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، بی بی فاطمہ، نبی کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، تم پورا دن کام کر کے تھک جاتی ہو، چکی چلاتے چلاتے تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تم نبی سے کہو وہ ایک ملازمہ ہمیں دے دیں تاکہ تمہیں کچھ آرام مل سکے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کے پاس جاتی ہیں، لیکن وہ کافی شرمیلی تھیں، اسی لیے نبی سے کچھ نہ کہہ پائیں اور اپنے گھر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت علی سمجھ گئے بی بی فاطمہ بہت شرمیلی ہیں، اسی لیے کچھ نہیں کہہ پائیں۔ پھر حضرت علی اور بی بی فاطمہ دونوں گئے اور نبی سے درخواست کی، لیکن نبی نے کہا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ ادب کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئے۔ اگلے دن نبی بی بی فاطمہ کے گھر آئے اور کہا، بیٹی فاطمہ، میں تمہیں کچھ تسبیح بتاتا ہوں، وہ تم کثرت سے پڑھو گی تو اللہ پاک اس کا اجر تمہیں دے گا، تمہارے کھانے پینے میں رحمت اور برکت کرے گا۔ فاطمہ نے بڑی دلچسپی سے وہ تسبیح نبی سے پڑھنا سیکھ لی۔ پھر ایک دن حضرت علی صحابی کے پاس پہنچے، کہا کہ جس دن سے نبی کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھنا شروع کی ہے، ہم نے اس دن سے ہمارے گھر میں تنگی ختم ہو گئی، پریشانی کم ہو گئی، دکھ ختم ہو گئے۔ حضرت علی نے صحابیوں کو وہ تسبیح بتائی۔ پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم
2 दिन के भूखे बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो के घर आए, और लेकिन बीबी फातिमा के घर खाने के लिए कुछ नहीं था। आप फातिमा के चेहरे से समझ गए कि फातिमा के घर खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपने फातिमा से कहा, मेरी बेटी फातिमा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देखने का दिल चाहा तो मैं तुम्हारे घर आ गया, लेकिन फातिमा को पता लग गया था कि नबी भूखे हैं। उसके बाद फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ने बैठी और नमाज में रोने लगी, अल्लाह से इल्तिजा करने लगी, रोती हुई कहने लगी, या अल्लाह, तू मुझे चाहे जितना दुख दे दे, लेकिन मेरे बाबा जान को कोई परेशानी ना दे, उन्हें भूखा ना रख। तभी फातिमा देखती हैं कि उनके घर कोई खाने पीने का सामान रख गया है। बीबी फातिमा खाना देखकर बहुत खुश हुई और नबी जी को बुलाकर ले आईं। तब नबी ने फातिमा से पूछा, बेटी फातिमा, खाना कहाँ से आया? तब फातिमा ने नबी से कहा, जैसे हज़रत मरियम के लिए अल्लाह ने खाना भेजा था, वैसे ही हमारे लिए भेजा है। तब नबी समझ गए कि अल्लाह ने जन्नत से बीबी फातिमा के लिए खाना भेजा है। नबी ने और हज़रत अली और बीबी फातिमा ने और हसन हुसैन ने साथ में बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद बचे हुए खाने को देखकर बीबी फातिमा ने कहा, हमें ये खाना पड़ोसियों को खिलाना चाहिए, वो भी ये खाना खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। बीबी फातिमा ने पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें भी खिलाया। पड़ोसी खाना खाकर बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्रिया किया। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी को 3 दिन से ढूंढ रहे थे, लेकिन नबी कहीं नहीं मिल रहे। फिर हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर मुनाफिक के पास गए और कहा, ए मुनाफिको, हमारे नबी को देखा है तुमने? तब मुनाफिकों ने कहा, नहीं, हमने तुम्हारे नबी को नहीं देखा। फिर हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से कहा कि चलो हम आगे चलते हैं, आगे चरवाहों ने शायद नबी को देखा हो। तब हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर आगे चले गए और चरवाहों से बोले, क्या भाई तुमने हमारे नबी को देखा है? तब चरवाहों ने कहा कि भाई 3 दिन से उस गुफा में एक आदमी रो रहा है। तुम यकीन करना, 3 दिन से हमारे जानवर जो घास खाते हैं वो घास नहीं खा रहे, और जो जानवर दूध देते हैं वो दूध नहीं दे रहे। शायद भाई तुम अपने उस आदमी को ले जाओ तो हमारे जानवर खाना खाने लगे और दूध भी देने लगे। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर ये सुनकर समझ गए कि ये हमारे नबी की शान है, जिसकी वजह से जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया, दूध देना छोड़ दिया। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर गुफा में पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि नबी सजदे में हैं और वो उम्मती उम्मती करके बहुत रो रहे हैं। उसके बाद हज़रत उमर ने नबी से कहा कि नबी, आप यहाँ उम्मती उम्मती करके रो रहे हैं और हम आपको 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, चलिए उठिए, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन नबी ने अपना सर नहीं उठाया, वो सजदे में ही रहे। उसके बाद हज़रत अबू बकर ने कहा कि नबी, मैं अपनी ताउम्र की इबादत आपकी उम्मत के लिए बख्शता हूँ, आप हमारे साथ चलो। लेकिन नबी सजदे से तब भी नहीं उठे। फिर वो दोनों गुफा से बाहर आ गए और जाने लगे। उन्हें रास्ते में हज़रत अली मिले। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर ने हज़रत अली को सब बात बताई। हज़रत अली घर गए और बीबी फातिमा को सब बताया। बीबी फातिमा, हसन और हुसैन और हज़रत अली नबी के पास गुफा में आए और बीबी फातिमा ने नबी से कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम 3 दिन से परेशान हैं, हम 3 दिन से आपको ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ उम्मत उम्मत करके रो रहे हैं। लेकिन नबी ने अपना सर सजदे से नहीं उठाया। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, नबी, आपके हसन हुसैन, आपके लगते जिगर भी आपके लिए रो रहे हैं, अब तो आप अपना सर उठा लो। लेकिन नबी ना उठे। उसके बाद बीबी फातिमा ने नबी से कहा कि नबी, मैं आपकी उम्मत के लिए अपने हसन हुसैन को कुर्बान कर दूंगी। तब अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और कहा, जाओ मेरे दोस्त से कहो वो सजदे से उठ जाए और रोना बंद करे और उनसे कहना कि मैं तब तक उनके किसी उम्मती
को जहन्नुम में नहीं डालूंगा जब तक वो ना कहेंगे। उसके बाद जिब्राइल नबी के पास आए और अल्लाह का पैगाम दिया। तब नबी ने सजदे से सर उठाया। उसी बीच ईद के दिन हसन और हुसैन बीबी फातिमा के पास आए और बीबी फातिमा से कहने लगे, अम्मा जान, बाहर बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे इतने खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं, हमारे कपड़े कहाँ हैं? तब बीबी फातिमा ने मजबूरी में कहा, हाँ बेटा जाओ, तुम भी नहा कर आओ और तुम्हारे लिए भी नए कपड़े हैं जो दर्जी के यहाँ पर हैं। उसके बाद हसन और हुसैन वहाँ से चले गए। फिर बीबी फातिमा ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह तू मेरी लाज रख लेना, मेरे हसन और हुसैन नहाने के लिए गए हैं, वो आकर मुझसे नए कपड़े मांगेंगे तो मैं कहाँ से दूंगी, और अगर मैं उन्हें कपड़े ना दे पाई तो मुझसे कहेंगे कि अम्मा जान कपड़े कहाँ हैं, और मुझे कहेंगे नबी की बेटी होकर झूठ बोलती हो, या अल्लाह तू मेरी लाज रख लेना। फिर वो देखती हैं कि हसन और हुसैन हाथ में पोटली लेकर आ रहे हैं। बीबी फातिमा ने कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? हसन और हुसैन ने वो पोटली बीबी फातिमा के हाथ में दे दी। जब बीबी फातिमा ने वो पोटली खोली तो उसमें नए कपड़े थे। वो हसन और हुसैन से कहती हैं, तुम्हें ये किसने दिया है? हसन और हुसैन कहते हैं, अम्मा जान, ये हमें बाहर दर्जी ने दिया है। माँ फातिमा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। ये था आज का वाक़या। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।